A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. I hope you all are doing fine. It's just that it's a bad day for me. It's a bad throat day for me actually today. I hope I'm audible to everybody and Yes, everybody is ma'am. able to understand to what I'm saying. All right, great. So I would just give a brief introduction about myself and then I will start with uh, the purpose for which I've come here for all of you. I am Priyanka and I am a faculty at Pahuja Law Academy. I teach various subjects at Pahuja Law Academy, which includes Indian Evidence Act. I take up family law, I take up Hindu law and Muslim law. Then I take up Specific Relief Act, Law of Torts, and many others. So as I just listen to you all, I can figure out that there are students who have now been promoted to the next semester, and then there are students who have just taken admission in the field of law. So what I'll do is I'll tell you about all the career opportunities which you can explore after the completion of law. See, we at Pahuja Law Academy, we provide coaching for judicial services. But then, not only on judicial services, I'm going to highlight upon, there are many more areas which you can explore, which you can think of when you are pursuing law. So, abhi, what I think and what I have seen during my college days when I was pursuing law, that every year, every semester, you have another career on your mind कि अभी मैं ये फील्ड एक्सप्लोर कर लेता हूँ. आई शुड बी गोइंग इन टू लिटिगेशन. जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, they want to join their fathers only, or they want to do internship anywhere else. But then I think it is not only curtailed to litigation or judicial services, but then there are many other options which you can explore. And now I will be telling you that what all options you can explore. All right. So I'll be now screen sharing what I have to show to you all. I hope that is fine, ma'am. Can I screen share now? Yes, ma'am. All right. Okay. So see, talking about the career opportunities after law, there are many career opportunities, and one by one, I will make you understand all. Right? So what you can do is you can just sit with a paper and a pen so that even you can jot down these essential points for yourself. We will be discussing things. So I'm not just going to dictate stuff to you, but I'm going to make things clear to you. So the very first thing I would like to tell all of you is, let's see, whether it is a 3 years course or whether it is a 5 years course. So you know that a 3 year course is taken up after completing graduation, and when we are into a 5 year course, we are just doing it after completing school, after completing 12th, right? तो चाहे आपका कोर्स 3 years है या आपका कोर्स 5 years है, the career opportunities remain the same. So there is no difference between students of 3 years course and students of 5 years course, right? In a way, जब हम ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हैं तो आपको 3 years ग्रेजुएशन प्लस 3 years लॉ, और जब हम 12th के बाद लॉ करते हैं तो हमारे पास 5 years लॉ है. You have BA LLB, you have BBA LLB and many other courses. तो आपके subjects first 2 years तो उन्हीं subjects से related होते हैं. Like if you are doing BA LLB, you will be doing history, you will be doing political science honors, political science, you will be doing sociology. So all these are the subjects which are pursued in political science honors as well. तो अब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू कि अगर आप लॉ जब कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, क्या क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं.
The very first is that you can work for LPO. So how many of you, I would want to have active participation from the class as well. Everybody needs to participate. How many of you have heard about LPO? Tell me. Please give me your responses in the chat room. How many of you have heard about the working line LPO? Nobody? Okay. See, when we talk about LPO is the legal process outsourcing. तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में होता क्या है कि बाहर से फॉरेन से वी गेट सम वर्क विच इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन लॉ, राइट. तो आप वहाँ पर जब काम कर रहे हैं तो आपने जो भी अपने 5 years ऑफ लॉ में सीखा है, सम रिलेटेड टर्म्स डेफिनेटली यू विल लिसन टू, बट अदरवाइज जो लॉ एप्लीकेशन है दैट इज नॉट सिमिलर. तो आप इंडिया का लॉ वहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे जो आपने 5 सालों में सीखा है. तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप LPO अगर ज्वाइन करते हैं, बी प्रिपेयर्ड विद दिस इन योर माइंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई what you have learned in the last 5 years, right? So this is one option you have, that is you are going to work for, you can work for an LPO. ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है आपके पास. Another option which you have is that you can opt for many PG diploma courses. You can opt for PG diploma courses. अब PG diploma courses में there are many areas which you can, from which you can pick one of your choice. तो जैसे 5 साल के बाद हमें मालूम चल ही जाता है that this is my area of interest, this is where I want to go, this is where I want detailed knowledge. तो डिप्लोमा कोर्सेज आपको वहीं पर हेल्प करते हैं. एंड देन देर आर वेरियस ऑप्शंस हियर, लाइक इफ आई टेल यू अ फ्यू, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन डू योर डिप्लोमा कोर्स इन environmental law. Right now environmental law talks about the environment protection. Obviously I'm not teaching you here, but then it talks about the Indian Forest Act, it talks about the Wildlife Protection Act, it talks about the Air Pollution Control Act, it talks about Water Pollution Control Act and many other things. तो environmental law में भी आपके पास स्कोप है अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं. एंड वन बाय वन आई विल टेक अप. तो environmental law का एक डिप्लोमा कोर्स हो गया. देन there is a possibility of doing a diploma course in criminology and penology. Criminology and penology. So criminology is studying about the criminals, the crimes. Penology is studying about the punishments. तो आप लोगों का लॉ, जब आप लॉ परस्यू कर रहे हैं तो आपका एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स विच स्टूडेंट्स हैव इज इंडियन पीनल कोड, राइट. तो आपका इंडियन पीनल कोड एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन आई टॉक टू देम दे आर लाइक वी वांट टू प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ, वी वांट टू बी इन दिस फील्ड ओनली. तो सिविल की तरफ तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ईदर इट इज कॉर्पोरेट और इट इज क्रिमिनल लॉ. सो you can do a diploma course in criminology and penology as well. ठीक है. Then the very in thing nowadays which is cyber law. तो आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे क्राइम्स जो कमिट होते हैं, इवन इन IPC there have been various amendments in 2013 which were made, जिसमें voyeurism, जिसमें stalking और ये सब चीज़ें ऐड हुई थी. तो अब इनसे क्या होता है, इनमें आपको मालूम चलता है कि क्या क्या चीज़ें क्राइम्स कमिट हो सकते हैं साइबर में भी, यानी कि कंप्यूटर्स पर भी क्या क्या क्राइम कमिट हो सकते हैं. तो साइबर लॉ इज ऑल्सो वन इन थिंग विच यू कैन परस्यू एंड दैट्स अ गुड डिप्लोमा कोर्स. तो साइबर लॉ में बहुत स्कोप है. देखिए अब इन तीनों पर ही पहले मैं अगर स्टिक करूं, अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ परस्यू करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इन्वायरमेंटल लॉ में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लेट मी टेल यू हियर. द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज दैट यू कैन बिकम एन इन्वायरमेंटल एनालिस्ट.
एनवायरमेंटल एनालिस्ट, ठीक है, आप यहाँ पर एनालिस्ट बन सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी यहीं पर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, राइट? This is one opportunity you can explore. Then the third opportunity here itself is that you can become a product manager. अब ये सारी पोस्ट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई होगी, दैट इज गोइंग टू बी कर्टेल्ड टू द एनवायरमेंटल लॉ ओनली, और उसमें आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारी पोस्ट हैं जो आपको मिल सकती हैं वंस यू आर डन विद अ डिप्लोमा कोर्स। तो प्रमोशंस भी होती हैं, जैसे आप जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं यहाँ पर। तो हर स्टूडेंट का ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज डेफिनेटली डिफरेंट, एंड देन यू कैन बिकम एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर एनालिस्ट, राइट? So this is one field, one area which you can explore, environmental law. अभी आप पढ़ेंगे environmental law. I think it is going to be there in the 3rd year or the 4th year, depending upon the syllabus you have in your colleges. तो आप लोग उसी हिसाब से इसे फॉलो करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है at any point of time that you are inclined towards environmental law, so please keep this in mind that you can take up a diploma course in the same field and you can become, either of these options. Okay, talking about criminology and penology, see here you have an option to either become a drug policy advisor, and then another option which you have in hand here is you can become a crime intelligence analyst, है ना? तो जैसे ही the moment we listen to the term crime, it in a way just interests it so much. आप CBI ज्वाइन कर सकते हो, CBI में लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है which you will have to take up and then only you can join CBI. तो आप यहाँ पर ये दो ऑप्शंस हैं जो आप क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? टॉकिंग अबाउट साइबर लॉ, तो साइबर लॉ में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप साइबर लॉयर एंड एक्सपर्ट बन सकते हैं। साइबर लॉयर एंड एक्सपर्ट यू कैन बिकम, राइट? तो इन 3 एरियाज में से, इन 3 कोर्सेज में अब आपको चूज करना है। डू नॉट लिसन टू एनीबडी कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ। नो, इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू टेक अप फॉर योर फ्यूचर। तो आप पहले डिसाइड करिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। क्या मेरा इंटरेस्ट साइबर लॉ में है? साइबर लॉ भी आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, लॉ के कोर्स में द बेस्ट थिंग अबाउट LLB इज Ma'am, you are not audible. yes, am I audible now, ma'am? Yes, ma'am. Okay, so talking about these 3 diploma courses, अब ये 3 diploma courses, I hope this is clear to everybody sitting here. This is clear to everyone. Okay, now let me go to the another diploma course which I have for you here. साइबर लॉ के बाद आप परस्यू कर सकते हैं, यू कैन टेक अप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब स्टूडेंट्स ने अदरवाइज सुना हुआ होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और आपके कॉपीराइट्स और इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो अगर IPR में आपका इंटरेस्ट है, विच ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप नाउडेज, तो आप यहाँ पर एज अ लीगल एडवाइज़र अपॉइंट हो सकते हैं in a MNC, right? So you can be a legal advisor in a MNC. So this is another career opportunity after completing law, right? Then another diploma course which you can take up is tax law. अब कुछ के fathers अगर income tax में already practicing advocate है, they don't have to go to the courts, they just have to go to the tribunals, income tax tribunals and all.
लेकिन अपील में अगर आप जाते हो, यू विल हैव टू गो टू द हाई कोर्ट ऑल्सो एंड अदर प्लेसेस एज वेल। तो अगर आप टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टैक्स में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो टैक्स लॉ का भी डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है, और इसे कंप्लीट करने के बाद आप आईटी कंसल्टेंट या फिर लॉयर बन सकते हैं। एज आई सेड, यू कैन लिटिगेट मैटर्स हियर एज वेल। तो ये 2 डिप्लोमा कोर्सेज और हो गए। तो मैंने आपको कौन कौन से बताए? एनवायरमेंटल लॉ बताया, देन आई टोल्ड यू क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, आई टोल्ड यू साइबर लॉ, then I told you IPR, and the 5th is tax law, right? Now, after these, you have many more options, like you can also go in for labor laws. Labor laws. अभी आप लेबर लॉ भी अपने LLB में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ते हैं वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, उसमें आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, देन यू हैव मेनी मोर एक्ट्स है, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। तो लेबर लॉज में भी बहुत स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि इंक्लिनेशन हो जाता है ग्रेजुअली, तो लेबर लॉज में भी आप परस्यू कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्स। एंड वंस यू आर डन विद अ डिप्लोमा कोर्स इन लेबर लॉ, you have an opportunity to become a labor officer. लेबर ऑफिसर बन सकते हैं आप, एग्जाम देके गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। सो ऑल दीज आर ऑप्शंस आफ्टर डूइंग दीज डिप्लोमा कोर्सेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो ये तो हो गया कि आप LLB करा, उसके बाद आपने अपना अनदर ऑप्शन टू यू, अनदर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू इज, जैसे आपने डिप्लोमा कोर्स करा, अब आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ऑल्सो टेक अ LLM। जैसे अभी तो आप LLB कर रहे हैं, राइट? जैसे बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉज, नाउ दिस इज मास्टर ऑफ लॉज। तो जब हम LLM yes, yes, there is a diploma for company law. yes, there are many more diploma course. See, if I tell you, there is this institute ILI. अगर आप ILI में जाते हैं, वहाँ पर आपको LLM का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपको वहाँ पर जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज, सी एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज हैज इट्स ओन डिप्लोमा कोर्सेज। So I had to name a few for all of you, and whichever area you are more interested in, you can inquire about the same and enroll for the same, right? All right? Yes, ma'am. Okay. Okay. So when we talk about LLM, everybody is well versed with. Now when we talk about LLM masters in law, masters of laws, तो आपके पास एक there is another opportunity here that you can take a नेट एग्ज़ाम। आप नेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लेक्चरर, आप एज अ लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हैं, राइट? सो इवन दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सी दोज स्टूडेंट्स, आई सी मैनी स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, तो वो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली LLM भी करते रहते हैं। LLM करने से फ़ायदा उन्हें क्या मिलता है? दे आर इन टच विद स्टडीज़ और जुडिशियल प्रिपरेशन करते टाइम, सी बिकॉज जुडिशरी इज समथिंग कि बहुतों का क्लियर हो भी गया और कुछ का क्लियर नहीं भी हुआ अगर, सो दे हैव अनदर ऑप्शन विद देमसेल्व्स दैट इफ नॉट जुडिशरी, दिस इज वन ऑप्शन वी कैन टेक अप। और किसी को ज़रूरी नहीं दैट एवरीबडी एम्स फॉर जुडिशरी ऑल्सो। तो अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, दिस इज द वे, दिस इज द रूट हाउ यू कैन बिकम अ लेक्चरर, राइट? ओके, then another option with you is you can become a legal journalist also. You can become a legal journalist. अगर आप लोगों ने there are nowadays many apps जो आपको latest news and latest judgments and all के बारे में भी inform और updated रखता है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा लाइव लॉ ऐप के बारे में, बहुत सारे लोग इसे लिव लॉ ऐप भी प्रोनाउंस करते हैं, सो विच एवर वे यू प्रोनाउंस इट। तो लाइव लॉ ऐप में आपको सारे जो जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, आपको वो सारे जजमेंट्स वहाँ पर अपडेट किए जाते हैं, राइट? अपलोड किए जाते हैं। सो यू कैन बिकम अ लीगल जर्नलिस्ट एज वेल। अब लीगल जर्नलिस्ट में आपको वो सारी अपडेटेड न्यूज़ जो है related to laws, the judgments and all, the law in force, the laws which have been repealed, आपको ये सारी चीज़ें in
एज अ लीगल जर्नलिस्ट ध्यान रखनी होगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आती है दैट इज टेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ लॉ ऑफिसर। सी आई टेल यू समथिंग, इफ you are looking for a job, how do you look for a job? जैसे आपने सुना होगा there is this newspaper, employment newspaper, employment आता है, तो वो fortnightly आता है, तो हर 15 दिन उसमें जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें आती हैं। तो वहाँ पर आप देखकर पता करके that where a competitive exam will be held, which company is organizing a competitive exam, the government companies organize the competitive exams, तो उनको आप उन एग्जाम्स को देकर you can become a law officer, right? और लॉ ऑफिसर बनने के बाद आप एमएनसी में भी अपॉइंट किए जा सकते हो, आप बैंक्स में भी अपॉइंट किए जा सकते हो। तो बैंक में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बैंक के लीगल अफेयर्स देख रहे हैं, लीगल डिपार्टमेंट में लग जाएं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद भी बहुत स्कोप है दैट यू कैन बी अ लॉ ऑफिसर इन एनी गुड एमएनसी or in a good bank, right? This is another career opportunity for you. Then talking about another career opportunity is work for NGO. You can work for NGO also. Now working for NGO is absolutely your choice. In fact, choosing a career option is absolutely your choice. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स काम सीखने के लिए how to go about things, how to learn, from where to learn, they join NGOs. तो किसी भी अच्छे NGO को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, and it's not that you don't have money there. आप वहाँ पे पैसा भी कमा सकते हो in a way, but then not as much as you will earn in a corporate sector or into litigation, or you are as settled as in judicial services, right? So this is another career opportunity which you can explore. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। अब जैसे आप लोग अपना लॉ कंप्लीट कर लेंगे कुछ टाइम में, और उसके बाद आप लोगों को देयर इज दिस एग्जाम विच इज़ नाउ टेकन अप, विच इज़ ऑल इंडिया बार एग्जाम। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस एग्जाम? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस एग्जाम? ओके, raise your hands, or you can write in the chat room also, whichever way you feel comfortable, right? Okay, all right, so many of you have, that means, right? So all India bar exam, let me tell you here very clearly about it, that this is something nowadays is a threat to most of the students. That's what I have seen. Why? Because उन्हें ये लगता है कि why an exam after law, but then let me tell you, ये एग्ज़ाम अब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस हियर इन इंडिया। तो अब आपके लिए ये मैंडेटरी हो चुका है एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। इसका जो सिलेबस है दैट इज़ 20 सब्जेक्ट्स। सो ऑल द पिलर्स ऑफ लॉ आर आस्क्ड हियर, जैसे कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड इन एआईबी। तो एक बारी लॉ कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से रिवीजन करना होगा और अपना ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना है। अभी वैसे बात ये चल रही है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अर्लियर द बुक्स, द नोट्स एंड एवरीथिंग वाज अलाउड, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। आई थिंक ओनली बैरक्स विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो दैट मीन्स यू कैन अकम्पनी, यू कैन टेक अलॉन्ग योर बैरक्स, और उसमें आपको अगर आता होगा तो ही आप लोकेट कर पाएंगे प्रोविजन, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड नो कि आपको लॉ कंप्लीट करने के बाद एक और एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है, एंड दैट इज़ ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। अब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम करने के बाद फ़ायदा क्या होगा? You are going to be an advocate,
एडवोकेट का मतलब होता है दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और एडवोकेट आप कहाँ बनते हैं? इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर आप लॉयर बन सकते हैं, उसके बाद आप लिटिगेशन करिए, किसी भी फील्ड में आप लिटिगेट कर सकते हैं, बी इट अ सिविल मैटर, बी इट अ क्रिमिनल मैटर. So all these opportunities you have in hand once you are done with law. And now the opportunities which I want to share with you, the last opportunity which I have for all of you here is judicial services. Judicial services. Now let me ask first, how many of you want to prepare for judicial services? How many of you? How many of you are inclined towards judiciary? Only 3 participants, only 3 candidates. Okay. Include me, ma'am. Sorry. You don't have to unmute yourself. You can just write it in the chat room, or you can just raise your hands. Tell me, how many of you are interested in judicial services? All right, okay. So that means there are some, and maybe after listening to me, you plan to prepare for judicial services. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जुडिशियल सर्विसेज जब आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ईदर यू आर अपॉइंटेड एज अ सिविल जज और यू आर अपॉइंटेड एज अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट? तो जब आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, देखिए बहुत सारे मिथ्स हैं बच्चों के दिमाग में, लाइक कि क्या एलएलबी कंप्लीट करने के बाद मैं जुडिशियल सर्विसेज जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? द आंसर इज़ येस, यू कैन टेक अप जुडिशियल एग्ज़ाम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉ, राइट? तो जुडिशियल सर्विसेज का जो आप एग्ज़ाम देते हैं ना, इसमें जो सिलेबस कवर होता है दैट इज़ क्वाइट वास्ट, बट देन according to me and according to the candidates I have been I have come across from the last 11 years, तो मैंने ये देखा है कि the syllabus is very much manageable. Just a second please. Right, see, so once the syllabus is very much within reach, क्योंकि देखिए जो मेजर पोर्शन होता है ना, वो आप लोगों ने एलएलबी में ऑलरेडी कर लिया होता है. जैसे मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स बताए, आईपीसी यू आर वेल वर्स्ड विद, सीआरपीसी यू आर वेल वर्स्ड विद, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, द मर्केंटाइल लॉ. Mercantile law includes what all? It includes Indian Contract Act. Please mute yourself. Mercantile law. Please mute yourself. So when we talk about mercantile law, we have Indian Contract Act, we have Partnership, we have Specific Relief Act, right? So all these acts, Sale of Goods Act, तो ये सारे लॉज आप लोग पढ़कर ऑलरेडी आए होते हैं. लेकिन जुडिशियल सर्विसेज में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग देखते हैं एरियाज, दोज एरियाज आर ट्रांसलेशन, राइट? देन you have to be well versed with current affairs. Okay, you have to be well versed with English and Hindi, right? You have to be well versed with the latest judgments, and not only the latest judgments but also the landmark judgments, right? तो ये कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हम कभी भी अपने एलएलबी जब हम लॉ कर रहे होते हैं तब हम नहीं पढ़ते, नहीं करते. सो ट्रांसलेशन इज वन ऑफ दोज एरियाज, करंट अफेयर्स इज वन ऑफ दोज एरियाज, इंग्लिश, हिंदी, लेटेस्ट जजमेंट्स और द लैंडमार्क जजमेंट्स. लैंडमार्क जजमेंट्स हमें कराए जाते हैं, जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर ऑफर पढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, इन्विटेशन टू ऑफर, तो आप कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक ज़रूर पढ़ते हैं, राइट? तो कुछ ऐसी जजमेंट्स जो लैंडमार्क हैं वो तो हमें कराई जाती हैं.
But then when you're preparing for judicial services, this is one area where you really have to concentrate, right? तो ट्रांसलेशन के लिए देखिए, जुडिशरी के लिए प्रेपरेशन करना है अगर आपने, तो प्रेपरेशन आपकी बहुत सिस्टमैटिक और माइंडफुली आपको करनी होगी. So it has to be done in a very systematic manner. You have to decide. See, there are many options available to you. Like हर स्टेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को इनिशियली चूज़ी नहीं होना है. आप लोगों को पहले से ही ये डिसाइड नहीं करना दैट यू नो दिस इज़ द स्टेट वेयर आई वांट टू बी, दिस इज़ द स्टेट वेयर आई विल नेवर गो. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैम हम तो कभी यूपी नहीं जाएंगे, हम तो कभी राजस्थान नहीं जाएंगे, मुझे उत्तराखंड नहीं जाना, मुझे तो दिल्ली में ही रहना है, या मुझे हरियाणा ही जाना है. सो यू नो एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन. बट देन माई सजेशन टू यू वुड बी, देखिए हर एक स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उनके कुछ कॉमन लॉ सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ कॉमन लॉ सब्जेक्ट्स, कुछ इज़ अ रॉन्ग वर्ड, उनमें 95% द सिलेबस इज़ ऑलवेज द सेम. जैसे सिलेबस जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं आपके, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, CPC और ऑल द पिलर्स आई हैव जस्ट मेंशन, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कॉमन हैं, ये तो आपको प्रिपेयर करने ही हैं. लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं ना, तो वहाँ के कुछ लोकल लॉज भी हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं. तो लोकल लॉज इज़ वन एरिया जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं व्हेन दे आर अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम. सो हियर आई एम गिविंग यू द टिप्स एंड द ट्रिक्स हाउ यू कैन गो अबाउट योर प्रेपरेशन फॉर जुडिशरी, राइट. तो लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हमने 5 साल पढ़ी. अगर आप लोग अभी, विच सेमेस्टर आर यू पीपल इन, टेल मी, आप लोग अभी कौन से सेमेस्टर में हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जुडिशरी इज that you should have completed your law. That is the only eligibility criteria. जी बताइए, आप लोग कौन से सेमेस्टर में हैं सब? Okay, so some of you are in 3rd semester, some of you may be in 5th, some of you may be in 7th. तो आप लोग सब अलग अलग सेमेस्टर्स में हैं, इसका मतलब. तो मैं आप लोगों को अभी से ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग अभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, so this is the time that you prepare your law subjects in an appropriate manner. And why I am saying so, क्योंकि अगर आप अभी अपने law subjects ढंग से prepare कर लेते हैं ना, so that means you are halfway through, maybe more than half. क्योंकि एक तो आपका law तो पूछा ही जाता है, ठीक है, लेकिन besides law, what else is asked in the judicial services? देखिए मैंने आपको बहुत सारे एरियाज बता दिए, जैसे कि ट्रांसलेशन बता दिया. मैंने आप लोगों को एस्से राइटिंग नहीं बताया था. एस्से राइटिंग भी ध्यान रखिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है. देन यू हैव हिंदी एंड इंग्लिश. अब देखो हिंदी इंग्लिश किस तरीके से पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट है. जैसे आपसे कुछ जगह पर ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस ट्रांसलेशन, कैसे करें इसकी प्रेपरेशन? तो देखो इसकी प्रेपरेशन ना एक दिन में होगी ना एक महीने में होगी. सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ये एनालाइज करना है दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, राइट. और ट्रांसलेशन के लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो इन फॉर डिग्लॉट्स, यू शुड गो इन फॉर डिग्लॉट्स. तो आप लोग अभी तो सब बैरक्स पढ़ते हैं ना, जैसे यूनिवर्सल की बैरक सब कोई के पास होती है, इवन आई कैरी यूनिवर्सल बैरक. लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप लोगों को डिग्लॉट्स भी परचेज करनी चाहिए. डिग्लॉट्स का पर्पस क्या है? देखिए डिग्लॉट्स का बेनिफिट क्या होगा कि एक साइड उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और वही चीज़ उन्होंने ऑन दी अदर साइड हिंदी में मेंशन करी हुई है. So when you are reading a particular section in English, you are reading the Hindi version of it simultaneously. तो इससे क्या होगा कि आपकी constant practice बनेगी ट्रांसलेशन की, राइट. तो जैसे मैंने कहा ना, हिंदी आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आप इंग्लिश एक दिन में, एक महीने में नहीं सीख सकते. The same goes for translation. It needs
practice. Remember this always. Okay, so if you are preparing for judiciary, this is one thing you should really think about and give and devote time to it. Okay, this is for translation. Now, talking about essay writing. Now see, when we talk about essay writing, अब essay writing में क्या होता है, we do get the latest topics, which are in news. तो जितने भी, अब जैसे पैंडमिक सिचुएशन है, तो पैंडमिक सिचुएशन से रिलेटेड कुछ आ सकता है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज तो हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं. तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है. सी दिस इज वेयर द इंस्टीट्यूशन रियली हेल्प्स यू. हम आपको ये बताएंगे कि आपको ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां आपको कंसंट्रेट करके उन पर्टिकुलर एरियाज के लिए प्रिपरेशन करनी है, एंड हाउ टू राइट एन एसे. तो ये भी आर्ट आपको आनी चाहिए. तो एसे राइटिंग, अब हम जब स्कूल्स में थे, सो हाउ डिड वी प्रिपेयर फॉर एसेज, कुछ एक दो एसेज होते हैं, यू मग अप एंड यू गो एंड राइट इट डाउन. लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं होगा ना. यू विल हैव टू prepare yourself for any which topic which comes your way. अगर ऑप्शन ही नहीं आई तो ऐसा होता नहीं है कि ऑप्शन नहीं आएगी, पर अगर नहीं आई तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ टॉपिक फॉर विच यू कैन राइट. तो एसे राइटिंग इज वन एरिया जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से राजस्थान ने अपनी वैकेंसीज निकाली है, तभी फर्स्ट ऑगस्ट जो स्टूडेंट्स लॉ के लास्ट सेमेस्टर में हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश अलग पैटर्न है, ट्रांसलेशन है और तो अलग चीज वही है. लेकिन हिंदी और इंग्लिश को यही सजेस्ट करूंगी कि डेली टाइम्स वगैरह ना पढ़कर, द बेटर ऑप्शन फॉर यू ऑल इज दैट यू शुड ऑप्ट फॉर आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. तो ऐसे न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ें तो आप इन टच रहेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन मुझे मालूम है कि करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्ट ग्रेजुअली ही बनता है. जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. जिन लोगों को मालूम है, और दोज हु आर एटलीस्ट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड, तो उन लोगों को भी याद करना है ना. एग्जाम के लिए तो आपको देखो याद ही करना पड़ता है. आपके प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स आते हैं, आपके मेंस में भी करंट अफेयर्स आते हैं. एंड नाउ व्हेन आई से प्रीलिम्स एंड मेंस, तो मुझे सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में आपके 3 स्टेजेस में एग्जाम किया जाता है कंडक्ट. The very first stage is your preliminary examination. The second stage is the mains examination. And the third stage is the interview. Right? तो जब हम prelims की बात करते हैं ना, तो prelims में आपको MCQs आते हैं. MCQs. आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए होंगे. आप लोगों के ऑनलाइन का पैटर्न क्या था? Was it MCQ or was it subjective? Was it MCQ or was it subjective? सब्जेक्टिव. ओके, ऑल राइट. MCQ किसी सेमेस्टर में नहीं था. ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट. सो एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन पैटर्न. तो अब आप ये देखो, सब्जेक्टिव जो है ना वो आपका मेंस है, यानी कि आंसर राइटिंग. तो जब आप MCQs करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों ने जैसे अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, तो क्वेश्चन होता है और उसके साथ आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, एंड देन यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस. तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है. प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे लोगों की ये मिथ है कि एग्जाम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से ही पूछा जाता है. बेयर एक्ट अनडाउटेडली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी वाइटल रोल in your law field. आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं. So if you are studying law without studying your Bear Act, I would say you are studying nothing. You are studying nothing at all. तो जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये ना पता हो कि इसमें 238 सेक्शंस हैं, 238 सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस में क्या इसेंशियल्स हैं, क्या लिखा हुआ है,
तो तब तक आपको कुछ नहीं मालूम इसका मतलब। यस, प्लीज म्यूट योर सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अपने दिमाग में ये ध्यान रख के चलिए कि आप लोगों को बेयर एक्ट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। देखो, बेयर एक्ट्स को भी पढ़ने का ना एक तरीका होता है। जैसे आप सपोज, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, और लेट मी टेक इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो साइमल्टेनियसली, बोथ दी सब्जेक्ट्स। तो जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि आपके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन अगर आप इन 1 से लेके 75 सेक्शंस में क्या लिखा है, अगर आप डेप्थ में नहीं जानते या इसेंशियल्स नहीं जानते, तो आपके लिए वेस्ट है ये सारी चीज़ें। व्हेन यू आर, देखो, चाहे आप एडवोकेट बनो, चाहे आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दो, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद लॉ एटलीस्ट, राइट। तो अगर मैं कहती हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देयर इज दिस एरिया ऑफ कंसेंट, तो हम पढ़ते हैं ना कंसेंट, फिर हम पढ़ते हैं दैट द कंसेंट शुड बी फ्री, राइट। और कंसेंट फ्री कब होती है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ऐसे ही पढ़ते हैं ना में से। एंड देन टू मेमोराइज दिस इन ऑर्डर, हम क्या ध्यान में रख सकते हैं? लाइक कंसेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, free consent is defined in section 14 of Indian Contract Act, coercion 15, undue influence 16, fraud 17, misrepresentation 18, mistake is in 20, 21 and 22. But then where are the remaining sections? The remaining sections talk about the effect of such contracts. तो coercion का, fraud का, misrepresentation का effect क्या होगा? That is mentioned in section 19. और undue influence का effect क्या होगा? That is mentioned in section 19A. तो देखो, 13 से लेके 22 तक क्या sections हैं, ये आपको इस एक छोटे से फ्लो चार्ट से लर्न हो गए। So you know these are the tricks which you should know to memorize the sections. अब इसको लर्न करने के लिए आप याद रख सकते हैं, Can you forgive my mistake? तो अगर आप ऐसे भी लर्न कर लेना तो आपको हर चीज टिप्स पे, हर सेक्शन टिप्स पे हो सकता है। एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर योर सेल्फ। जैसे हम लोग क्या करते हैं when we are preparing for judiciary or for our law exams, what we tend to do is that we tend to copy things from 2, 3, 4 books. ठीक है, आपने लॉ स्कूल में ऐसे कर लिया, वेल एंड गुड, वो अच्छी बात है कि आपने तैयारी अपनी उस तरीके से रखी। लेकिन कंपाइलिंग और कंपाइलेशन ऑफ नोट्स इज नॉट सफिशिएंट। तो जब आपने अपने लिए नोट्स को गैदर कर लिया ना, तो आप ये चीज़ याद रखो कि जब भी आप रिविजन करेंगे या जब भी आप उसे फिर से पढ़ेंगे, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप वो इतना टाइम बार बार डिवोट नहीं कर सकते। तो मेरी आपको ये सजेशन है, मेरा ये आपको एडवाइस है कि आप लोग ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करिए। शॉर्ट नोट्स, एंड सी व्हेन आई टॉक अबाउट शॉर्ट नोट्स का मतलब हो जाता है कि आपको अपने नोट्स को कैसे शॉर्ट वर्जन में मेंशन करना है अपने लिए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब जैसे देखो, आप लोग आईपीसी पढ़ते हो, आईपीसी में व्हेन यू स्टडी थेफ्ट, तो थेफ्ट में आपको पता है कि सेक्शन 378 से लेके 382 तक इट डील्स विद थेफ्ट, राइट। तो 378 में ही तो खाली थेफ्ट के एसेंशियल्स मेंशन्ड हैं। बाकी सेक्शंस में 379, 380, 381, 382, इन 4 सेक्शंस में सिर्फ पनिशमेंट मेंशन्ड है, करेक्ट। तो आप लोग क्या करिए, इन चारों सेक्शंस की जो पनिशमेंट है वो आप इंडेक्स पेजेस में भी मेंशन कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू सजेशंस फ्रॉम माय साइड।
how you can prepare your notes for judiciary, right? तो बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स यूजफुल नहीं रहते Ma'am, क्योंकि one question, ma'am. हाँ जी बोलिए Ma'am, I बोलिए want to ask you one simple question, ma'am. The Yes. question is regarding if I want to prepare for any state for which is where Hindi and Hindi is not their vernacular language. right So for that, in the case of translation, I must know that state's language also, ma'am. now see if you are taking up Punjab Judicial Services Yes, ma'am. or Specifically. yeah, that's what I'm telling you. If you are taking up Punjab Judicial Services or you take up West Bengal Judicial Services या आप गुजरात जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं तो आप किसी भी स्टेट का जहाँ पे उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है दैन हिंदी तो वहाँ पर भी आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और आपके पास ना आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट यू हैव डन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टिल 10th standard. So it means if I want to, I natively belongs to the state of Punjab, ma'am. Okay. And but my endeavor is to go towards inclines towards the state of Punjab only. So I have not studied my Punjabi language or Gurmukhi in my schooling and all, but I can read it and I cannot write it. So for that I have to give again examination of 10th class right now in the present scenario. See what I have personally never appeared for any language exam like this. But then what I have gathered from the students who appear for such exams, that there is, a special exam for this. If you clear that exam, then only you can sit for the examination. You can talk to the concerned persons at our institute. वो आपको exactly guide कर देंगे that how to go about the language exam. और उसी तरीके से फिर आप प्रोसीड करिएगा. Right. Thank you. Alright. Okay. क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है हमारे यहाँ पर when they prepare for गुजरात जुडिशियल सर्विसेज तो वो गुजराती का पहले एग्जाम देते हैं और फिर जब उनके पास सर्टिफिकेट आ जाता है देन ओनली दे सिट फॉर द एग्जाम. तो आप इसका जो मेथोडोलॉजी है ना पूरा वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट में. ठीक है. राइट. सो दिस इज वन सजेशन फ्रॉम माय साइड कि आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए. ठीक है. उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि आपको देखो एक और एरिया आता है जुडिशरी में एंड दैट इज जजमेंट राइटिंग. राइट. अब ये जजमेंट राइटिंग बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वुड बी जजेस यू आर वुड बी जजेस तो आप लोगों को जजमेंट लिखनी होगी. तो जजमेंट को लिखना कैसे है. अब जजमेंट में क्या क्या है ये तो आपको सीपीसी में पढ़ा दिया जाता है दैट जजमेंट इज गोइंग टू कंटेन 4 थिंग्स और उसमें क्या क्या होगा. आप उसमें लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, आप उसमें लिखेंगे इश्यूज ऑफ द केस, फिर आप उसमें अपना डिसीजन देंगे और फिर उसमें आप अपना रीज़न देंगे जैसे हम बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडाई. तो ये 4 चीज़ें एक जजमेंट में कंटेन्ड हैं. लेकिन जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है that is going to be taught to you when you are preparing for judicial services. So this is one area which is not covered in LLB. तो ये जजमेंट राइटिंग भी आपको आनी मैंडेटरी है जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे. ठीक है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें पहले प्रीलिम्स की प्रेपरेशन करनी चाहिए फिर मेंस की प्रेपरेशन करनी चाहिए, हाउ टू गो अबाउट. तो देखो जब आप मेंस की प्रेपरेशन करते हैं विच इज़ द फाउंडेशन कोर्स ऑफ आर्ट्स जो 1 साल का या 13-14 मंथ्स का जो कोर्स होता है, वीकेंड बैचेस होते हैं, तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है आप लोगों की जो स्टडीज़ हैं वो एग्जॉस्टिव तरीके से कराई जाती हैं. सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज डेल्ट इन डेप्थ. हर एक सब्जेक्ट आपको डेप्थ में पढ़ाया जाता है. तो आप खुद सोचो जब आप एक चीज़ डेप्थ में पढ़ लोगे so you are in a way prepared for prelims also and you are in a way prepared for mains also. लेकिन अगर आप सिर्फ prelims की तैयारी करोगे तो mains के लिए तैयार नहीं रहोगे. और prelims और mains में ना जो टाइम गैप होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता. वो कुछ 40 डेज का 45 डेज का 2 मंथ्स का इतना ही टाइम पीरियड आपको मिलता है. तो आपके लिए क्या एडवाइजेबल है कि जिस टाइम आपने कोचिंग में अपने आप को एनरोल करा या जब अभी आप लॉ पढ़ रहे हो तब से ही आपको इफ़ योर टारगेट इज जुडिशरी तो आप अभी से अपनी तैयारी उस तरीके से रखिए
so that you are prepared for the exam when it comes your way. और एक और चीज़, अब जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है स्टेट्स का, तो उसके रफली 2 महीने में 45 डेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है प्रीलिम्स का। तो उस समय आपकी अप्रोच चेंज हो जानी चाहिए कि अब हमें तैयारी करनी है ओनली फॉर प्रीलिम्स, राइट। तो अब प्रीलिम्स में हमें क्या पढ़ना है, जो हमने लेटेस्ट जजमेंट्स पढ़ी, जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े, जो हमने हिंदी इंग्लिश पढ़ा, जो हमने लॉ पढ़ा, उसी को अब आपको कंपाइल करके याद रखना है। दैट इज इट। क्योंकि मेंस में तो आपको आंसर राइटिंग करनी है ना, यू हैव टू राइट डाउन आंसर्स। अब वहां पर भी आंसर राइटिंग में भी यू नीड आर्ट। कैसे, जब हम लॉ स्कूल में एग्जाम लिखते हैं तो हम एक ही चीज को 10 दफा तो रिपीट कर ही देते हैं, करते हैं ना। हाउ मेनी ऑफ अस डू द सेम? बताइए जरा, बताइए आप It's लोगों में से। हाँ, applicable for everyone. everyone. No, but then I would want, see, you are saying this on everybody's behalf, but I would want to know that does really everyone do the same? Because you know, I have taught an Amity Law School for 2 years, and I have seen this, that you know, students, they tend to write the same stuff again and again so that they can misguide the faculty, that you know, we have written such a long answer। और आप वहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी ये क्वेरीज भी होती हैं कि मैम हम इतने नंबर के क्वेश्चन में कितने पेजेस लिख कर आए। ये सब चीज़ें आप लोगों को जुडिशरी में नहीं करनी, ओके। जुडिशरी में आपको वर्ड लिमिटेशन है कि आपको इतने वर्ड्स में अपना आंसर वाइंड अप करना है, तो आपको स्ट्रिक्टली स्टिक करना है टू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू यू। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि सपोज यू नो आई टेक अनदर टॉपिक लाइक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इन हिंदू लॉ विच इज डेल्ट इन सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, 15 नंबर में, 20 नंबर में भी लिखना आना चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट दैट्स एन आर्ट which you will develop once you practice answer writing। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आपकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए प्रेपरेशन की। एरियाज तो आपको पता चल गए कि भाई मुझे अब ट्रांसलेशन भी पढ़ना है, मुझे एसे राइटिंग भी करनी है, मुझे जजमेंट राइटिंग भी करनी है, मुझे करंट अफेयर्स भी करने हैं, मुझे हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, स्टैटिक जनरल नॉलेज जो होती है, हिस्ट्री, राइट। जो मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, पर मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ that these are the areas। और मैं आपको सच बता रही हूँ, trust my words when I say this, that judicial exam is one exam which is very much within reach provided you prepare for it accordingly। तो आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड। देखो हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स की अप्रोच गलत हो जाती है कि वो ना नॉलेज गैदर करने में फंस जाते हैं कि हम इसी टॉपिक को ना जब तक बिल्कुल कोर तक समझ नहीं लेंगे, हमें यू नो वी विल नॉट सिट एट यू नो, हमें तो बस ये समझना है, हमें इसे ख़त्म करना है। ऐसे नहीं होता। आपको अपनी प्रेपरेशन करनी है एग्जाम ओरिएंटेड। और एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टिक योरसेल्फ टू द स्टेट यू आर नाउ गोइंग टू टेक द एग्जाम। वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ का पैटर्न समझो कि कैसे एग्जाम होता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अभी एमपी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर। तो जब एमपी का एग्जाम हुआ ना, वहाँ पे यूजुअल मध्य प्रदेश का पैटर्न क्या रहता है, that they tend to give you questions directly from the Bare Act, okay, very basic questions, very easy questions। लेकिन इस बार एमपी ने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। एमपी का जो पैटर्न इस बार आया, दैट वाज जस्ट लाइक हरियाणा एंड दिल्ली, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने एमपी का एग्जाम दिया, मेनी ऑफ देम वर लाइक यू नो वी वर नॉट जस्ट अवेयर ऑफ द पैटर्न। तो तभी मैंने आपको कहा कि फर्स्ट स्टेज पे ही आपको चूजी नहीं होना है। ठीक है, आपकी एक होम स्टेट है, आपका वहाँ के डोमिसाइल हो, या आपको वहीं पर जाना है फॉर सम अदर रीजन, तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। बट यू नो यू रियली कांट चूज एट द इनिशियल स्टेज। पहले आप एग्जाम तो क्लियर करो, पहले आप प्रीलिम्स क्लियर करो, फिर मेंस भी है, फिर इंटरव्यू भी है। तो जब आप सारी स्टेजेस क्लियर कर लोगे, जज तो बन के बैठो। एंड व्हेन यू आर सर्विंग एज अ जुडिशियल ऑफिसर, फिर आप कहीं का भी एग्जाम देते रहो साइमल्टेनियसली, किसी ने रोका थोड़ी है आपको।
You can take the exams of other states also. You can keep taking the exams. राइट तो प्रेपरेशन को अपने बहुत माइंड, जो मैंने वर्ड्स यूज करे आप लोगों के लिए, माइंडफुली और सिस्टमैटिकली, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू, अपना एक चार्ट बनाओ, अपना एक टाइम टेबल, अपना एक शेड्यूल बनाओ. You have to wake up early. Waking up early does not mean that you have to wake up at 5 o'clock, 6 o'clock. No. Wake up early would mean that if you're in your 9th semester and if you want to be a judicial servant, so that's an alarming situation for you, that now this is the time I should start preparing for judiciary. क्योंकि पैंडमिक की वजह से अभी तक हुआ क्या है, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, तो उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है कि भाई क्या करें क्या ना करें. बट नाउ व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैकेंसीज ऑन द वे. बहुत सारे एग्जाम्स अब होने वाले हैं. टू नेम अ फ्यू, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, ये तो अब इसी साल में होने वाले हैं 3 एग्जाम्स तो. और अभी कोई और नोटिफिकेशन, आई थिंक उत्तराखंड और उनकी भी नोटिफिकेशन आई हुई है. तो इस तरीके से ना आप लोगों को अपनी एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे आप लोग लॉ स्कूल में नहीं करते कि अच्छा ज़रा बताना मैम इसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मैं प्रिपेयर कर लूँ और अपना एग्जाम दे आऊँ. पूछते हैं ना हम. So this is the same way you have to prepare for judiciary also. Rather than covering everything under the sun, do things, do stuff जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो पहले करो. जैसे अगर आप आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ना करो, 299, 300 ना करो, 304, 302 ना करो, तो आपका आईपीसी ही इनकम्प्लीट है ना. तो इसी तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी है, इसी तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम. तो अब मैंने जो आपको एरियाज कहे मैं वो फिर से एक बारी मेंशन कर रही हूँ. अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर कोई वैसे अदरवाइज टेक्निकल कुछ रहा जो आपको इंस्टीट्यूट ही बता सकेगा, तो वो मैं आपको रेफर कर दूंगी कि आप इंस्टीट्यूट में बात करिए. बट जितने मैं डाउट्स आप लोगों के सॉल्व कर पाऊंगी डेफिनेटली करूंगी. जैसे मैंने देखिए आप लोगों को कहा दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बेयर एक्ट्स. ठीक है, एक तो ना किताबें खरीदने में कभी कंजूसी मत करना. डोंट बी स्टिंजी. जितनी बुक्स खरीदोगे उतना ज़्यादा पढ़ोगे. मतलब पढ़ोगे तो आप लोगों को मालूम है कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स खरीदो. मेक योर ओन लाइब्रेरी so that you can study well. Yes, Soumya, you raised your hand. Okay. All right. So the very first thing which you have to keep in mind is that you have to keep your bare acts handy. अब देखो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्रिमिनल जैसे हार्ड बाउंड बेयर एक्ट्स खरीद लेते हैं. What I have seen personally is, जैसे मेरे पास जो मेरा क्रिमिनल मैनुअल है, इवन दैट इज हार्ड बाउंड. यू कैन नॉट कैरी इट एवरीवेयर टू रीड इट, है ना. तो आप क्या करिए, अपनी जो हार्ड बाउंड बुक्स हैं उन्हें स्पाइरल बाइंडिंग करा लो. उससे क्या होता है, वो मैनेज करने में ईजी हो जाती है स्पाइरल बाइंडिंग. देन अनदर सजेशन टू यू विच आई गेव इज दैट यू हैव टू मेक योर शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स. Short and crisp notes. And when I say crisp, I really mean crisp notes. I have, when I used to make notes for myself, I remember I had, like compiled the whole of Indian Contract Act in some 5 to 6 pages. I did the whole of IPC on the Bare Act index pages. I did the whole of CRPC on the index pages and some 2 to 3 attached pages. क्योंकि उसमें आपको लिखना सब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर वो एसेंशियल चीजें लिखनी है जो आपको टाइम टू टाइम याद करनी है फॉर द एग्जाम, राइट. क्योंकि थ्योरी तो याद नहीं करनी होती ना बार बार. वंस वी रीड इट वी आर डन विद इट, वी रिमेंबर, बिकॉज वी आर मैच्योर इनफ टू रिमेंबर दिस मच एटलीस्ट. फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने जजमेंट राइटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट.
Then I told you you have to concentrate on current affairs also. Then I told you translation is one area, right? So these are the areas where I really want you to devote your time. देखिए लॉ, मैं आपको बताऊं, जब भी कोई एग्जाम जुडिशरी का कंडक्ट होता है, लेट्स टेक अ रेशियो, जैसे यहाँ पर अगर 10,000 कैंडिडेट्स बैठा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, तो इन 10,000 स्टूडेंट्स में से ना सिर्फ 1,000 बच्चा, 1,000 भी शायद मैं ज़्यादा बोल गई, मैक्सिमम 1,000 बच्चा जो है वो लॉ के साथ साथ ये सब पढ़कर भी आएगा, जो प्रीलिम्स में ज़रूरी है या जो मेंस में ज़रूरी है. तो आप ये देख लो, ऑल दीज थिंग्स विल गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. लॉ तो हम सभी पढ़ लेंगे, पढ़ लेते हैं ना लॉ. अच्छा, मेरा लॉ अब तैयार हो गया, अब मुझे बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है. दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. यू शुड डू इट साइमल्टेनियसली. क्योंकि बहुत सारे जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, जो नहीं कर पाते जुडिशरी क्रैक, दिस इज वन ऑफ द मेन रीज़न. हमारा तो लॉ बहुत अच्छा है मैम, पता नहीं क्यों नहीं हुआ क्लियर. बिकॉज यू डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज एरियाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि इनको लाइटली मत लीजिएगा, इनको सीरियसली लीजिए इफ़ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट जुडिशरी. तो बेयर एक्ट्स एंड देन ऑल्सो ऑब्वियसली द लैंडमार्क जजमेंट्स. अब मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं, मैम साइटेशन भी लर्न करनी है क्या? कितनी साइटेशंस लर्न कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना. तो साइटेशंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती. अगर आपको लैंडमार्क जजमेंट्स का ईयर याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको लेटेस्ट जजमेंट का ईयर याद हो जाए, 2019 की है, 20 की है, 21 की है, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपको पूरी साइटेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है. और कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम अगर हम जजमेंट का नाम ही भूल जाए तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, भूल जाओगे तो. अगर आप जजमेंट का नाम भूल भी जाते हो तो उस केस में आप लोगों ने एग्जाम में लिख कर आना है, इन द लैंडमार्क जजमेंट इट वाज हेल्ड दिस एंड दिस. सो दिस वे यू कैन डू इट, राइट? समझ में आया आप लोगों को सबको? मैम एक देयर इज वन क्वेरी मैम Yes. regarding like judgment case, landmark judgment is these citations are because all punishments are awarded, because when you write any punishment that is awarded, the word awarded is using over there, that it has been awarded to a particular case ma'am. So is these judgment writing is directly they will ask you in question papers, or in the concern of that judgment writing the question has been asked, or in the crux of the judgment? No, now see, what happens is, like, when you study Section 81 of IPC, Section 81 of IPC talks about the rule of necessity. अब रूल ऑफ नेसेसिटी में एक लैंडमार्क जजमेंट है डुडले वर्सेस स्टीफेंस की. तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 81 में डुडले वर्सेस स्टीफेंस है. सो दे माइट आस्क यू दिस वे प्रीलिम्स में कि 81 में कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है. सो दैट्स डुडले वर्सेस स्टीफेंस. अगर आप 84 की बात करें, जहाँ पर हम इनसैनिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए दैट इट इज़ रिलेटेड टू मैकनॉटन्स रूल. तो मैकनॉटन्स रूल आपको याद होना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट कितनी अवार्ड की, ये नहीं पूछते हैं वो आपसे ये पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन से, जैसे सपोज मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स मेंशन करा, तो कंज्यूगल राइट्स के अंदर आपको सरोज रानी का केस पता होना चाहिए, कौन से केस में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया गया था, दिस यू शुड नो. तो वो पनिशमेंट कितनी दी गई वो नहीं पूछता आपसे, वो ये पूछते हैं that what was held in this decision, either they will ask this, or in which particular case this particular fact was held. This is the way the judgments are asked. और मेंस में तो आप अपने आंसर्स को सपोर्ट करेंगे जजमेंट्स की हेल्प से, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड that you need to concentrate a lot on previous year questions. तो previous year questions देखकर आपको बहुत चीज़ों का आइडिया लग जाता है that how the questions will be asked in the examination. Okay? All right? Yes, anything else?
Any other question? No question, ma'am. No question. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, ma'am. मैम हेलो जी जी. मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैम जुडिशरी में जाना कंपलसरी है क्या, या सिर्फ एज एन एडवोकेट भी हम अपना कर सकते हैं, मतलब करियर आगे? आप बहुत बेहतरीन लॉयर बन सकते हैं. जुडिशियल सर्विसेज में जाना जरूरी नहीं होता. ओके मैम. अच्छा. ठीक है. जुडिशियल सर्विसेज में जाना जरूरी नहीं होता. ये आपको मैंने सारी ऑप्शंस, आई थिंक यू ज्वाइंड इन लेट. यस मैम, आई जॉइन हाँ, लेट. तो मैंने वो सारी ऑप्शंस बताई कि आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वंस यू हैव कंप्लीटेड लॉ. ओके मैम. ओके. या. ओके, थैंक यू सो मच मैम. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you for giving me such a golden opportunity to interact with all the students. Thank you very much for watching this video. Like this video, subscribe to our channel and share it with your friends. And don't forget to press the bell icon to receive real-time updates of our lectures. Thank you.